सो व्हाट इज इनवेरिएंट वेक्टर? अगर हमारे पास एक वेक्टर है x, इस वेक्टर को अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए and we are getting the same vector capital X just with a multiplication by some scalar lambda, then a vector X satisfying this equation is called as invariant vector. Here capital X is called as invariant vector, A is the square matrix, lambda is the scalar. Okay, now Ax equal to lambda x, so this is the equation in which X is the invariant vector. What we have done, I introduced I between lambda and X. I is just like 1, I क्या है 1 के जैसा है, तो जैसे ही हमने I यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया लैम्डा x टर्न आउट टू बी लैम्डा आई एक्स. वी ब्रॉट दिस टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड, x को कॉमन ले लिया, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0. सो इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स ए होमोजेनस सिस्टम बिकॉज द राइट हैंड साइड इज 0. So homogeneous system can have two types of solution, trivial solution and non-trivial solution. We are not at all interested in trivial solution. We are looking for non-trivial solution. Non-trivial solutions are giving us certain information regarding the system. So what is the necessary condition for a homogeneous system to have a non-trivial solution? What is the necessary condition for a homogeneous system to have a non-trivial solution? The necessary condition is that the coefficient matrix must be a singular matrix. So what is the coefficient matrix here? Coefficient matrix is A minus lambda I. So if this coefficient matrix is singular, it means its determinant must be 0. When I equate this determinant to 0, I will be getting a polynomial equation in terms of lambda. Sir, what will be the degree of this polynomial equation? That is completely dependent on the order of square matrix A. If your square matrix is a 2 by 2 matrix, then this will be a quadratic, that is a degree 2 equation in lambda. If matrix A is a cubic, if matrix A is a 3 cross 3 matrix, then this equation will be a cubic equation in terms of lambda. Similarly, if matrix A is having order 4 cross 4, then this will be a biquadratic equation, degree 4 equation. If this matrix A is n cross n matrix, then this will be polynomial equation in degree n, that is this is an equation in terms of lambda having degree n. So all my dear students, this equation 3 is the characteristic equation, and of course the roots of this equation are relevant for us, important for us, and they are called as eigenvalues. So roots of the characteristic equation are called as eigenvalues. So students, you may be thinking, you would have heard eigenvalues, this term a lot many times in your engineering semesters. You may or may not have gone through the process how these eigenvalues are named like, or how these eigenvalues are being evaluated. So students, eigenvalues are the roots of characteristic equation, and characteristic equation is being derived from a special vector named as invariant vector. So invariant vector is the foundation for eigenvalues. All right. So equation 3 is the characteristic equation and its roots are called as eigenvalues. इक्वेशन 3 को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा जाता है और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स को कहा जाएगा आइगन वैल्यूज. नाउ हाउ मेनी आइगन वैल्यूज विल बी एग्जिस्टिंग फॉर ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स? किसी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कितनी आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी? तो दोस्तों, the number of eigenvalues is exactly equal to the order of the matrix. If you are having a 2 cross 2 matrix, then 2 eigenvalues will exist. If you are having a 3 cross 3 matrix, then 3 eigenvalues will exist, and so on. So depending on the order of the matrix, the number of eigenvalues will exist. Okay, sir. Sir, what will be the nature of eigenvalues? I mean to say whether they are distinct, complex, or whatever. So eigenvalues can be real and distinct. Eigenvalues can be real and equal, और sometimes they can be complex as well. Eigenvalues का नेचर क्या होता है सर? बेटा इस इक्वेशन को, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको आइगन वैल्यूज मिलेंगी. तो आइगन वैल्यूज रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल जिसको आप रियल एंड रिपीटेड भी कह सकते हैं, या फिर कभी कभी आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. ऑलराइट, यस सर. देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, important points associated with the matrix. Already I have discussed and explained these points, but just read out for your understanding. So students, equation A minus lambda I determinant equal to 0, here 0 should be here.
is called as characteristic equation and its roots are called as eigenvalues. ये जो इक्वेशन है इसे हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और इसके रूट्स को कहेंगे आइगन वैल्यूज. आइगन वैल्यूज के और भी कई नाम होते हैं. आइगन वैल्यूज आर नोन बाय सम अदर नेम्स आल्सो. व्हाट आर द अदर नेम्स बाय व्हिच these आइगन वैल्यूज कैन बी कॉल्ड? So आइगन वैल्यूज आर आल्सो कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, latent roots or latent values. So eigenvalues are also called as characteristic roots, characteristic values, latent roots or latent values. And very important fact is that eigenvalues or the concept of eigenvalues existing only and only for square matrix. We cannot have eigenvalues for rectangular matrix. Rectangular matrix के लिए eigenvalues नाम की कोई चीज़ नहीं होती. We cannot have. We do not have eigenvalues existing for rectangular matrix. Eigenvalues exist only and only for square matrix. Square matrix के लिए ही eigenvalues का concept valid है. Rectangular matrix के लिए eigenvalues जैसी कोई चीज़ नहीं होती है. Number of eigenvalues existing for a given square matrix is always equal to the order of the matrix. Matrix का जितना order होगा उतनी ही eigenvalues exist करेंगी. For a 2 cross 2 matrix, 2 eigenvalues will exist. For a 3 cross 3 matrix, 3 eigenvalues will exist and so on. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कितनी आइगन एग्जिस्ट करेंगी दोस्तों? जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा. अगर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का होगा तो 2 आइगन वैल्यूज होंगी, 3 क्रॉस 3 का होगा तो 3 आइगन वैल्यूज होंगी एंड सो ऑन. आइगन वैल्यूज का नेचर क्या होता है? व्हाट आर द वेरियस नेचर्स ऑफ आइगन वैल्यूज? सो आइगन वैल्यूज कैन बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल और समटाइम्स दे कैन बी कॉम्प्लेक्स. आइगन वैल्यूज रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल हो सकते हैं और कभी कभी आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. Just have a look over this. Let's proceed. So here comes the very first example by which we will learn how these eigenvalues are being calculated. पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, इसमें हम सीखेंगे कि आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं. So they have given us a 2 cross 2 matrix and they are asking us to calculate the eigenvalues of A. If A is 1, 2, 3, 2, find eigenvalues of A. I'll do this. So see here. First of all, we will be calculating the characteristic equation. Now what is this characteristic equation? What is the format? Format is A minus lambda I determinant equal to 0. So students, I am going to give you a short trick how to quickly write down this characteristic equation. जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना होता है. See here. डायगोनल एलिमेंट्स से लैम्डा माइनस कर दीजिए. डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस कर दीजिए. जस्ट सब्ट्रैक्ट लैम्डा फ्रॉम द डायगोनल एलिमेंट्स. सो 1 2 सब्ट्रैक्ट लैम्डा. सो 1 माइनस लैम्डा एंड 2 माइनस लैम्डा. देन व्हाट? एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स, that is off diagonal elements, keep them as it is and equal to 0. क्या किया हमने? Just subtract lambda from the diagonal elements of the given matrix and remaining elements should be kept as it is. That's it. Diagonal elements से lambda subtract कर दीजिए और बचे हुए elements as it is लिख दीजिए. So this is how this characteristic equation is being formed. All right. Now we will solve this determinant दोस्तों. So 1 minus lambda multiplied by 2 minus lambda minus 6 equal to 0. 1 into 2 is 2 minus 2 lambda, 1 into minus lambda, then plus lambda square minus 6 equal to 0. So what to do now?
lambda square minus 2 lambda minus lambda is minus 3 lambda, 2 minus 6 is minus 4 equal to 0. So students, हमने ऑलरेडी आपसे कहा था कि अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा वो क्वाड्रेटिक बनेगा लैम्डा के फॉर्म में. सो this is my equation number 1. Now what can be done? See, now I will be solving this characteristic equation and find out the value of lambda. So roots of this characteristic equation will be the eigenvalues. देखते हैं इसके फैक्टर्स करते हैं. So we will get lambda minus 4 and lambda plus 1 as the factors. Check it, lambda square minus 4 lambda plus lambda is minus 3 lambda minus 4, that's it. So we have got the factors. Now what to do? Lambda minus 4 equal to 0, you will get lambda equal to 4. Lambda plus 1 equal to 0, you will get lambda equal to minus 1. So we have got the two eigenvalues, lambda 1 and lambda 2. So these are the eigenvalues. So roots of characteristic equation are the eigenvalues. हमने roots find कर लिए. These are the eigenvalues of matrix A. Okay sir. तो इस मैट्रिक्स के eigenvalues find करना था, हमने find कर लिए. That's it. It's a simple question. All right. Still, if you have any issues, please write in the comment box. Let's proceed. So the larger of the two eigenvalues of the matrix 4, 5, 2, 1, they have already given you a square matrix and they are asking for the larger eigenvalue. So this question appeared in GATE 2015. GATE 2015 में क्वेश्चन अपीयर हुआ था. सो प्यारे दोस्तों देखते हैं इसे भी. हमने सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है वो है A 4, 5, 2, 1. Now I will write the characteristic equation. Characteristic equation. What is the format? The characteristic equation is A minus lambda I determinant equal to 0. कैसे लिखेंगे? जल्दी जल्दी कैसे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? सर, सब्ट्रैक्ट लैम्डा फ्रॉम द डायगोनल एलिमेंट्स. डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस कर दीजिए. सो 4 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, 2 and 5 as it is, 2 and 5 as it is, remaining elements as it is. Now what to do? We will be simplifying this equation now. 4 minus lambda into 1 minus lambda. सॉल्व करना है भाई इसको. 4 minus lambda into 1 minus lambda and minus 2 5s are 10, minus 2 5s are 10. ओके सर. देखो बच्चों, हमने क्या किया, हमने a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे. जो इसके रूट्स होंगे वो आइगन वैल्यूज होंगे. एंड व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी द लार्जर ऑफ द टू वैल्यूज. दैट्स इट. सो जस्ट सिंप्लीफाई दिस. लैम्डा स्क्वायर 4 minus 4 lambda and minus lambda will be minus 5 lambda. 4 minus 10 is minus 6 equal to 0. So lambda square minus 6 lambda, just a moment, this is the characteristic equation, so we can write this as lambda minus 6 and lambda plus 1. चेक करो जरा. So lambda square minus 6 lambda plus lambda is minus 5 lambda and minus 6, that's it. So lambda 1 equal to 6 or lambda 2 equal to minus 1. So larger of the two eigenvalues, this is the answer. This is the larger eigenvalue. I hope you got it. This is my answer.
ऑल राइट दोस्तों, जस्ट हैव ए लुक ओवर दिस. Any issues, any doubts? Shall I proceed? Yes, of course. Just go through it. So we'll proceed now. There are few important points regarding the eigenvalues. So students, किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का सम उस मैट्रिक्स की ट्रेस के बराबर होता है.
किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का सम उस मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर होता है और आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है. The sum of eigenvalues of a given square matrix is always equal to the trace of the matrix and product of eigenvalues is always equal to determinant of the matrix. देखिए, if you have a square matrix A and let us say its order is 3 cross 3 has eigenvalues. इसकी कितनी eigenvalues होंगी? 3 होंगी सर. इसकी eigenvalues होंगी 3. हमने अज्यूम कर लिया. लेट A हैज आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3. ये हो गई इसकी 3 आइगन वैल्यूज. देन देखिए, सभी आइगन वैल्यूज का सम मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर होता है. जिनको नहीं पता होगा मैं उनके लिए बता देता हूँ ट्रेस का मतलब क्या होता है. किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस यानी कि उसके प्रिंसिपल डायगोनल में आने वाले एलिमेंट्स का सम. सो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड एज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट. Sum of eigenvalues is equal to trace of the matrix. Product of eigenvalues is equal to determinant of the matrix. Just have a look over this. देखिए, इस मैट्रिक्स का ट्रेस और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. तो सेम मैट्रिक्स था, इसकी आइगन वैल्यूज हमने अभी अभी निकाली थी. आज का पहला एग्जांपल 4 और -1. इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज है 4 और -1. 1 2 3 2 था, 1 2 3 2 आइगन वैल्यूज है 4 और -1. आइगन वैल्यूज of matrix A are 4 and -1. Eigen values of matrix A are 4 and -1. ओके सर. लैम्डा 1 हमने अज्यूम कर लिया 4 और लैम्डा 2 हमने अज्यूम कर लिया -1. तो trace of this matrix will be lambda 1 plus lambda 2. That will be equal to 4 plus -1 और ये हो जाएगा 3. And what about determinant? डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, ट्रेस भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे, बट मैं आपको ये प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 4 and -1's प्रोडक्ट. 4 और -1 का प्रोडक्ट. तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम डायरेक्टली इसका ट्रेस कैलकुलेट करें तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम आएगा 1 + 2 यानी कि 3. और इसका डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 × 2 is 2, 2 - 6 दैट विल बी -4. तो स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आप गेट 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंजीनियरिंग मैथ्स पर कमांड करना चाहते हैं तो संकल्प 2025 ये क्लास आपको करना चाहिए. दिस क्लास विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. ये कोर्स आप ले लीजिए एंड यस कोर्स लेना है तो यू हैव टू you are having a structured schedule. So the fees is nominal fees for that is 1500 rupees as of now और एक्चुअल फीस से ये ऑलमोस्ट 37% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है. अगर आप राइट टाइम पर कोर्स ले लेते हैं तो आपको ये डिस्काउंट मिल पाएगा. कहीं आप ये डिस्काउंट लेने से मिस ना कर जाएं. तो अगर आप करना चाहते हैं तो देरी किस बात की, ले लीजिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो दोस्तों ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है. इस 3x3 के आइगन वैल्यूज हमें निकालना है. थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. डेमो क्लास में उतना सब टाइम आपको पेशेंस नहीं भी रहेगा. तो मैं इसकी आइगन वैल्यूज आपके सामने लिख देता हूँ और फिर इसका ट्रेस और डिटर्मिनेंट निकाल देता हूँ. तो आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3. बेटा इसके आइगन वैल्यूज आएंगे 0, 3 और 15.
चलो आपको लग रहा होगा कि कैसे आई, तो मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ आपको। इसका हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ओके सर, तो क्या करना होगा, डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना, यहाँ से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 8 माइनस 7, 8 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा, एंड देन वी हैव 3 माइनस लैम्डा। रिमेनिंग एलिमेंट्स कॉपी कर दीजिए। लैम्डा सब्ट्रैक्ट किया डायगोनल एलिमेंट से, 8 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, रिमेनिंग एलिमेंट्स कॉपी कर दिए, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ऑल राइट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 8 माइनस लैम्डा, ये टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट, 7 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, -4 इंटू -4 इज 16, तो यहाँ पर आ जाएगा -16, माइनस ऑफ -6 विल बी +6, -6 इंटू 3 माइनस लैम्डा, then minus of -4 into 2, that is -8, that will become +8, फिर लास्ट टर्म आएगी +2, 24 -2 टाइम्स 7 माइनस लैम्डा। अब जरा इसको इत्मीनान से सॉल्व करेंगे अगली फ्रेम पर। यहाँ तक ठीक है? 3x3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टेप कैलकुलेट करने के लिए समय इन्वेस्ट कीजिए, गलतियाँ नहीं होगी। सो 8 माइनस लैम्डा को कुछ ना करें, एज इट इज़ लिख दें। देखो 7 3 ज़ा 21, -16 करूँगा तो 5 आ जाएगा, -3 लैम्डा -7 लैम्डा मिलकर हो गए -10 लैम्डा, माइनस लैम्डा मिलकर हो गए प्लस लैम्डा स्क्वायर। फिर यहाँ लिखा है +6, सॉल्व कर लो दोस्तों। -18 + 8 मिलकर हो गए -10, -6 एंड माइनस लैम्डा का प्रोडक्ट हो गया +6 लैम्डा, +2 टाइम्स हम्म 24 माइनस 14, 2 7 ज़ा 14, 24 माइनस 14 कितना होगा, दैट विल बी 10, -2 और माइनस लैम्डा मिलकर हो जाएगा +2, इक्वल टू 0। हो गया सिंप्लीफाई। और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। जस्ट अ मोमेंट, पहले मैं माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, दैट विल बी माइनस लैम्डा क्यूब, देन 8 लैम्डा स्क्वायर और +10 लैम्डा स्क्वायर मिलकर हो गया 18 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा वाली टर्म्स देखो, 8 इंटू -10 इज -80 लैम्डा और -5 लैम्डा मिलकर हो गया -85 लैम्डा, और 8 5 ज़ार 40, 6 6 ज़ार 36 लैम्डा, 6 इंटू -10 इज -60, 2 इंटू 10 इज 20, 2 2 ज़ार 4 लैम्डा। हम क्या कर रहे हैं, हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व, 3x3 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकाल रहे हैं। ओके सर, वी गॉट इट। ये टर्म लिख लिया मैंने,
फिर 18 लैम्डा स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, ये भी लिख लिया हमने। अब -85 लैम्डा और ये दोनों मिलकर 40 लैम्डा, 40 लैम्डा, -85 लैम्डा प्लस 40 लैम्डा मिलकर हो जाएगा -45 लैम्डा। 40 प्लस 20 60, -60 कैंसिल। ये आ गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ से मैंने माइनस लैम्डा कॉमन निकाला तो बचेगा लैम्डा स्क्वायर -18 लैम्डा प्लस 45, और फर्दर ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को भेज दो जीरो में, तो लैम्डा -3 और लैम्डा -15 ऐसे फैक्टर्स हो गए इसके। कोई शक, कोई दिक्कत तो बताइए। इजी चीज़ें हैं तो बेटा। तो एक वैल्यू आ गई लैम्डा इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू आ गई लैम्डा इक्वल टू 3 और तीसरी वैल्यू आ गई लैम्डा इक्वल टू 15। सो by this method we got the eigen values. So these are the eigen values of matrix A. तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ आपके पास आई थी 0, 3 और 15। पहले मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्ट आपको ट्रेस और डिटर्मिनेंट निकाल के बता दूं, आइगन वैल्यूज़ डायरेक्ट लिख देता हूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि आप शक करेंगे कि 3x3 की आइगन वैल्यूज़ बहुत कठिन होती होगी, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कठिन है, फैक्टर्स भी इजीली हो जाते हैं। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा बेटा। गेट के पेपर में 1 मार्क और 2 मार्क लेना है, तो जैसे ही 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, आपके पीछे 4000 बच्चा छूट जाता है। तो उतना आप करना चाहते हैं, 4000 लोगों से आगे जाना चाहते हैं, इफ़ यू विश टू मूव अहेड ऑफ 4000 एस्पिरेंट्स, देन यू हैव टू स्पेयर सम टाइम। यू हैव दैट एक्स फैक्टर इन यू, you have that patience, you have that problem solving skill, or if not there then you need to develop those skills. So हमें चाहिए उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज 0 इंटू 3 इंटू 15। एक भी आइगन वैल्यू अगर 0 है तो आंसर 0 आ जाएगा, मतलब वो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स की, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की एक भी आइगन वैल्यू 0 है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है। क्यों सिंगुलर होता है? बड़ा सिंपल है, क्योंकि आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट के बराबर है। द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, एंड इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 0, वन और मोर आइगन वैल्यूज आर 0, देन द प्रोडक्ट विल बी डेफिनेटली 0, एंड दैट स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी a singular matrix because its determinant is 0. Trace of it: lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. So you will get 18 as the eigen value, sorry 18 as the trace. So इस मैट्रिक्स का ट्रेस देख लीजिए आप, डायगोनल एलिमेंट्स का सम 18 आ रहा है, ट्रेस इज 18। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 0। इतना तो कर ही सकते हैं अब आप। हमने आइगन वैल्यूज भी निकालना बता दिया आपको। ऑलराइट, just go through it. Just have a look over this. एक बार इसको देखिए ध्यान से आप। So let's proceed. सवाल देखिए, कंसिडर अ 2x2 मैट्रिक्स। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स है सिग्मा एक्स ओमेगा सिग्मा।
where x is some unknown. If the eigenvalues of the matrix A are sigma plus j omega and sigma minus j omega, then x is equal to. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ व्हाट दे हैव गिवन, matrix A sigma x omega sigma. So मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज भी दी हैं. आइगन वैल्यूज of this square matrix A, they have already mentioned the eigen values. Lambda 1 is sigma plus j omega and lambda 2 is sigma minus j omega. All right. Now what is the property? Property क्या होती है eigen values की? Product of eigen values is equal to determinant. All right. So आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट हो गया सिग्मा प्लस जी ओमेगा और सिग्मा माइनस जी ओमेगा. व्हाट अबाउट द डिटर्मिनेंट? सिग्मा एक्स ओमेगा सिग्मा. Now a plus b, a minus b, so a square minus b square. B square is j square omega square. Here solve the determinant. यहाँ पर determinant solve कीजिए. सिग्मा इंटू सिग्मा हो जाएगा दोस्तों सिग्मा स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स. अब देखिए ये सिग्मा स्क्वायर एज इट इज. बेटा j मतलब कि आयोटा, यहाँ पर i की जगह j लिखा हुआ है. j स्क्वायर इज -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया. ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स. सो दोनों तरफ से सिग्मा कैंसिल हुआ. ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स. आई नीड द वैल्यू ऑफ एक्स, सो एक्स विल बी माइनस ओमेगा. आई होप यू गॉट दिस. Option D is the correct answer. They ask us to find out the value of x, so x is minus omega. All right, देखिए इसको एक बार. So once again students, I want you to recall that tomorrow onwards we are starting our batch for engineering maths for GATE 2025, that is Sankalp 2025. So this will be a daily 2 hours dose of engineering maths right at 9 PM in the evening. So 90 plus hours of classes will be there. 90 घंटे से ज़्यादा की classes आपको मिलने वाले हैं. And students, after attending this course, what will be the outcome? The outcome will be you will be developing a command over the subject. You will become master of the subject. Yes. The diagonal elements of a 3 cross 3 matrix are -10, 5 and 0. Diagonal elements are -3 cross 3 matrix के diagonal elements है -10, 5 और 0. So diagonal elements are given. It means let us say the matrix is A. So trace will be sum of the diagonal elements, that is -10 plus 5 plus 0. So adding this we will get -5. If two of its eigenvalues are -15 each, let eigenvalues be lambda 1, lambda 2 and lambda 3. लैम्डा 1 हमने अज्यूम कर लिया लैम्डा 2 और लैम्डा 3 ये गिवन है, मान लीजिए 15. दो आइगन वैल्यूज 15 दी है, 15 हमने ले लिया. हम जानते हैं कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज ट्रेस के बराबर होता है. Sum of eigenvalues is equal to trace of the matrix. So lambda 1 is lambda 2 और lambda 3 15 each है, 15 plus 15 हो जाएगा. Trace of A is -5. Just have a look over this. Trace of A is -5. इन तीनों को ऐड करने से आया है.
सो लैम्डा प्लस 30 इक्वल टू -5, ये -5 है, ओके. So 30 gone to the other side, this will be -35. मैं जहाँ तक मेरी याददाश्त है, मैं समझता हूँ कि सवाल में लिखने में थोड़ी सी गलती हुई होगी. एक 10 है, दूसरी -5 है, फिर 0 है, बट एनीवेज जो भी है यहाँ पर हमने आंसर निकाल लिया. सो द थर्ड आइगन वैल्यू विल बी लैम्डा. सो दिस क्वेश्चन वाज अपीयर्ड इन गेट 2018. तो स्टूडेंट्स, देखिए, फॉर ए सिंगुलर मैट्रिक्स एटलीस्ट वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 0. अभी अभी हमने डिस्कशन किया कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 होगी. देखो, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट. अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, मतलब आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 होगा. आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनमें से कम एक आइगन वैल्यू 0 होगी. एंड दैट्स व्हाई वी सेड दैट फॉर ए सिंगुलर मैट्रिक्स at least one of the eigenvalue will be 0. So for a singular matrix at least one of the eigenvalue will be 0, and on the converse for a non singular matrix none of the eigenvalue will be 0. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स की कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 होगी. Now see, all the 4 entries of a 2 cross 2 matrix are non-zero. These all values P11, P12, P21, P22 are non-zero, and one of the eigenvalues is 0. One of the eigenvalues is 0. Then which of the following statement is correct? So student, very simple. Very simple, that matrix P is a 2 cross 2 matrix. 2 cross 2 matrix की दो आइगन वैल्यूज होंगी. मैट्रिक्स P की दो आइगन वैल्यूज हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2. ओके. प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट. ओके सर. एंड दे सेड दैट एटलीस्ट वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 0. बेटर टू कीप दिस डिटर्मिनेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज. ओके. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स P है ना भाई, ए की जगह पर क्या होगा? P. P11, P12, P21 और P22 दो में से एक आइगन वैल्यू 0 है, तो लैम्डा 1 इंटू 0, ये 0 आ जाएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? P11 P22 माइनस P12 P21, तो ये कितना आ गया आपके पास? सर दिस इज 0. जस्ट हैव ए लुक ओवर दिस. ऑलराइट. तो स्टूडेंट्स, इस डेमो क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं. वी जस्ट स्टॉप अवर डेमो क्लास हियर, एंड tomorrow onwards you will be seeing me in actual paid live class at 9 PM. और हमारा YouTube चैनल इंजीनियरिंग मैथ्स गुरु, उस पर भी आप कुछ क्लासेस देखते रहेंगे. लेकिन स्ट्रक्चर्ड मैनर में अगर आपको कुछ पढ़ना है, मुझसे कुछ करना चाहते हैं, देन यू हैव टू टेक अप द कोर्स संकल्प 2025, जो आपके लिए अभी ऑलमोस्ट 40% डिस्काउंट पर अवेलेबल है. तो ये सब चीज़ें हम जो आगे दिख रही है, ये सब पेड क्लास में क्लास नंबर 8 में कवर करने वाले हैं. यस, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं दो बार एक ही सेशन करूं, तो मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर प्लस का एक डेमो क्लास आपके सामने रखा, और उम्मीद करता हूं आपको मज़ा भी आया होगा, समझ में भी आया होगा, एंड डेफिनेटली विल एंजॉय दिस. सो स्टूडेंट्स, मैथ्स मंथन ऐप पर अभी आप लाइव मुझे देख रहे हैं, और स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप है हमारा इंजीनियरिंग मैथ्स गुरु का, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए. फिर ये हमारा ऐप है, ये डाउनलोड लिंक है ऐप का, जो हमने आपको ऑलरेडी शेयर भी कर रखा है अलग अलग जगह पर. दिस इज़ द स्टूडेंट सपोर्ट नंबर 9552795527, और ये हमारा स्टूडेंट सपोर्ट के लिए ईमेल आईडी balaji.education@gmail.com. तो स्टूडेंट्स,
Do join us in our engineering maths course Sankalp 2025. Thank you so much students. Love you all. Take care. Stay happy. Stay safe. याद रखिएगा कल से 6 नवंबर रात को 9 बजे पहला क्लास आने वाला है इंजीनियरिंग मैथ्स संकल्प 2025 बैच का. थैंक यू.